Good morning, students. How are you? I hope you are very safe at your home. So, today we will discuss the mathematics of class 7 NCERT, right? So, in the last video lecture, हमने properties of integer के बारे में सीखा और properties हमने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझ ली है. And on the basis of that, today we will solve the exercise 1.3 of chapter number 1, that is integer, right? So, हम देखेंगे chapter number 1. आप यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिख कर रखी हैं जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस की थी और इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज. व्हाट इज दैट? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन हमको दिया है 3 into -1. If we observe the question very carefully, so here we can see that 3 is the positive integer and -1 is the negative integer. So here we are multiplying the negative and the positive integer. So for that we have learned the identity number 2. यहाँ पर ये identity हमने देखी a into -b. a is the positive integer, -b is the negative integer. So how we can write that? -a into b and it will give us minus in the bracket a into b. So the same identity we can use here. So here we can have the value of a that is equal to 3 and the value of b that is -1 that is written over here, right? Now by using the identity, आप देख सकते हैं on the right hand side I have written this identity. What is that? a into b that is 3 into -1. It will give us -3 into 1. यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो हमने 3 के साथ लिखा हुआ है. So it doesn't affect the result. इसलिए हम ये कर सकते हैं यहाँ पर. और फिर फाइनली व्हाट वी कैन सी दैट -3 ये जो माइनस का जो साइन है इसको हमने आउट ऑफ द ब्रैकेट यहाँ पर रख दिया सेम एज लाइक दिस, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ a and b that is enclosed under the bracket. So finally we will have the answer -3. और यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी यूज की है we have to mention in the front of that answer, right? यहाँ पर हमको इसको मेंशन करना होगा. Similarly, if we see the question number b, so that is very same as the question number a. So this is the reason I didn't write the answer over here. You have to solve with yourself, right? Now we will see the question number c, that is -21 and -30. We have to do the multiplication of this two integer. So see carefully here, the two integers both are negative. तो हम अगर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करते हैं. So because a और b का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, so similarly we have to multiply the two minus sign which is given with the integer. So if I multiply this minus with this, right? So I will get the positive value, right? I will get the positive value. So ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, right? So here the value of a that is -21, the value of b that is -30. So we can put over here -21 multiply with -30. So minus into minus that will be positive, right? So positive 21 into 30. So it will give us 630. So that is the final answer of the question number C. And the identity whatever we have used over here, we have to mention in front of that answer. That is very compulsory. Now if we look the question number D, minus 360 multiply with -1. So here also we can have the two negative integer. So the answer of this answer is same like the question number C I have written, right? So you have to do with yourself. Now we will deal with the other questions. Just note it down, right? तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी के ये जो क्वेश्चंस दिए हैं E F G H I J जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे. जैसे हमने पहले के 4 क्वेश्चन देखे वैसे ही आपको आइडेंटिटी यूज करके आपको ये करना है. बट स्पेशली फॉर द क्वेश्चन नंबर H I N J, ये जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप फिर से एक बार उस वीडियो लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीजर की. उसमें ऐसा कहा गया था इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट इज इवन, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट? यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर J, -3 -6 -2 -1. यहाँ पर 4 नेगेटिव इंटीजर एंड द 4 द नंबर ऑफ इंटीजर दैट इज इवन, यानी कि 4 जो है वो इवन होता है. तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा. एंड सिमिलरली इफ यू सी the question number H, right? So here we have the 3 negative integer,
right? So the number of negative integer is 3 and 3 is the odd number, so you will get the product which is negative integer, right? तो ये चीज आपको, ये एक और प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, and on the basis of this three property you can easily solve the question number 1, right? So just note it down, so that will be very easy for you. Now we will deal with the question number 2. Students, we will see the question number 2, and question number 2 I want to inform you that this question is based on the property of distributivity of integers, right? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी सीखी थी उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी? सपोज वी हैव द थ्री इंटीजर a b and c and it is given a is multiplied the sum of b plus c, right? A is multiplied with the sum of b plus c, right? So what we can write that a into b plus a into c, यानी कि हमने इनिशियली a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बाद में a और c को मल्टीप्लाई कर लिया. So you can see that the multiplication of a into b plus the multiplication of a into c. So हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे. टोटली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो क्वेश्चंस है a and b, तो उसमें से हम पहले क्वेश्चन नंबर a देख रहे हैं. b जो है आप अपने आप से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है. वेरिफिकेशन करना है यानी आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है, जो दी हुई इक्वेशन है, उसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बराबर है या नहीं, या वो इक्वल है या नहीं. सो लेट्स सी, हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ a that is 18, the value of b that is 7 and the value of c that is -3, right? So what is written in the question? 18 into, in the bracket we have 7 plus -3, that is equal to 18 into 7 plus 18 into -3 in the whole bracket, right? So what we have to do, 18 जो है वो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर हमको 7 और 3 को ऐड करना पड़ेगा. So after the addition of 7 and -3 we will get 4. How it is possible? Because plus and minus का साइन जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, so the 3 become -3, ठीक है? तो -3 जब हम 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे that we will get 4, right? So if we multiply 18 into 4, so we will get 72. That is the final answer. And on the right hand side what we can see, 18 into 7 that is 126, right? Plus यहाँ पर प्लस आ गया, 18 into -3 it will give us -54, right? If we add these values, that is the positive integer, it is negative integer, so plus or minus minus, so it will again give us 70, right? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, that is equal to the right hand side, right? So यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे I have mentioned the identity of the distributivity of integer, जो कि मैंने ऊपर लिखा है. So this is very essential to mention the identity in the question, so everyone can understand कि क्वेश्चन को क्या आइडेंटिटी के बेस पे किया हुआ है. And you have to note down the question number 2 also here, right? So you have to do it yourself, right? तो ये आपका होमवर्क होगा. Now we will deal with the next question, question number 3. Students, now we will deal with question number 3. What is the question number 3? There are two questions, 1 and 2, that is written in Roman, right? So we will see the one. For any integer a, suppose we have integer a which is the positive integer, and what is -1 into a equal to, आपको यहाँ पर बताना है कि अगर ये जो इंटीजर a है, अगर उसमें मैं -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, या मुझे मिलने वाला जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. हियर -1 into a, तो हम आइडेंटिटी के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, -a into 1 that is equal to -a into 1 that is equal to -a, or simply we can say if we multiply -1 into a, so it will give us -a. So here यहाँ से एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से निकल के आ रहा है कि यहाँ पर a पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर मिलने वाला जो नंबर है -a है. तो यहाँ से बात क्या सामने आई कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को -1 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का यानी a का हमको एडिटिव इनवर्स मिल जाता है. क्या मिल जाता है? एडिटिव इनवर्स मिल जाता है. So here exactly we are finding the additive inverse of the given integer a, right? So यहाँ से हम एक बात यहाँ पर conclude कर सकते हैं, we get additive inverse of an integer a when we multiply -1 to a. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप किसी भी इंटीजर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so you will get its additive integer, right? So on the basis of this concept, the question number 2 is same here.
तो ये आपको खुद अपने आप से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कि यहाँ पर आपको तीन इंटीजर दिए हैं -22, 37 और 0। इन तीनों इंटीजर को अगर हम -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मिलने वाला इंटीजर कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप से कीजिए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है इसको आप नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू टाइम, राइट। सो नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज सेज, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 that is equal to 1। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमको मतलब समझना है, हमको स्टार्ट कहां से करना है। हमको यहाँ पर एक पैटर्न बताना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बता रखा है। पैटर्न का मतलब ये है एक ऐसा फैशन, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम यहाँ पर इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बता सके। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो दिया है हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विथ -1, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विथ -1, और हमको कहाँ तक जाना है, when we get the -1 multiply with -1 and ultimately we will get 1, right। तो देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो -1 into 5 होता है -5, राइट, एज यू नो दैट। फिर हम -5 से हम नीचे आएंगे बिकॉज हमको -1 तक जाना है, 5 से लेके -1 तक जाना है। तो हमको -1 के लिए क्या करना होगा, 5 से जो छोटा नंबर है 4, तो 4 into -1 that will give us -4, 3 into -1 that will give us -3, 2 into -1 that is equal to -2, 1 into -1 that is -1, 0 into -1 that is equal to 0 and -1 into -1 that is give us 1, राइट। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आके हम रुक गए, राइट। तो ये पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। एक पैटर्न में क्या दिख रहा है हमको, वी आर कमिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, यानी कि 5 जो है 5 से हम छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं। 5 इज द ग्रेटर नंबर, 4 उससे छोटा है, 3 उससे छोटा है, 2 इससे छोटा है, 1 फिर 0, हम -1 तक जा रहे हैं, राइट। तो ये पैटर्न हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे -4 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू -5 + 1, यानी -5 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें सो आई विल गेट -4। सिमिलरली वी कैन सी दैट 3, राइट। तो -4 + 1 दैट इज -3, -3 + 1 दैट इज इक्वल टू -2, -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1, और -1 + 1 that is equal to 0 and 0 + 1 that is equal to 1। So this type of pattern we have to ask into the question, right। यहाँ पर हमको ये कहा गया है, right friends। तो I hope कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will see the question number 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि a certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour, यानी कि टेम्परेचर शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो आपको बताना है कि 10 घंटे के अंदर यानी आफ्टर द 10 आवर उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आवर के तरफ 1 घंटे से लेके तो 10 आवर्स तक सभी का कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाया है। तो शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, 40 था, तो 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 होगा, 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर तीसरे घंटे में 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी ऑर्डर में हम टोटल 10 आवर्स तक जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे तो लास्ट में हमको 10 घंटे के बाद उस रूम का जो टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस आंसर को जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये यहाँ पर पूरा नोट करना है फेयर बुक के अंदर, और इस वीडियो लेक्चर में हम 6 क्वेश्चंस तक ही हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज वक्त बहुत कम है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन है 7, 8 एंड 9 इसका PDF जो है हम आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।